السلام علیکم، میں محمد عبدالباسط ایڈوکیٹ آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر ریٹ پٹیشن جو ہائی کورٹ کے اندر فائل کری جاتی ہے اس سے متعلق بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ بات کہ تمام ساتھی جانتے ہیں کہ ریٹ پٹیشن انڈر آرٹیکل 199 آف کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے اندر فائل کری جاتی ہے۔ اچھا، ریٹ پٹیشن کے اندر اس کے بارے میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کی کتنے اقسام ہیں اور ان کے نام، یہ سب کچھ نہیں لکھا ہوا، لیکن اس کے کنٹینٹس کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے یہ بات معلوم کری جا سکتی ہے، اور اس کے نام جو ہے وہ آٹومیٹیکلی مینشن ہو گئے۔ جو اس کی انٹرپریٹیشن ہوئی، جو اس کے اندر لوازمات شامل تھے، اس کی بنیاد کے اوپر اس کے نام جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں، اس کے نام موجود ہیں۔ اس کے اندر آپ ایک دیکھ سکتے ہیں ریٹ آف سرشوری رائے، اور ایک ہوتی ہے ہیبیس کارپس، اور تیسری نمبر پر ہوتی ہے مینڈمس، اور چوتھے نمبر کے اوپر پروبیشن، اور پانچویں نمبر کے اوپر کووارنٹ۔ اچھا، یہ جو ریٹ آف پٹیشنز ہیں، ان کے اندر ریٹ آف پٹیشنز کے اندر کس طریقے سے اور کیا کیا احکامات جاری ہوتے ہیں، وہ آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ریٹ کے اندر جج صاحب کن چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو کنسیڈر کر کے آرڈر کرتے ہیں۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کو کنسیڈر کیا گیا ہے اس کو ریورس کرا جائے گا، یا اس کے اگینسٹ جو آرڈر کیا جائے گا وہی جو ہے وہ اس کی اقسام ہے۔ اچھا، اقسام کی تفصیل کے اندر جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میں ویڈیو کو مختصر کرنے کے لیے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جج صاحب اس کے اندر یعنی ہائی کورٹ جو ہے وہ کن چیزوں کو کنسیڈر کرتی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کریں گے انڈر آرٹیکل 199، تو اس پٹیشن کے اندر جو اول چیز ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحب یہ دیکھیں گے کہ اس کا لوکس اسٹینڈائی کیا ہے۔ لوکس اسٹینڈائی مینس کہ یہ کورٹ کے اندر جس پٹیشن کو لے کر آیا ہے کیا یہ ایگریو پارٹی ہے یا نہیں ہے۔ یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ آپ رہتے ہیں کراچی کے اندر، یعنی کہ گلستان جوہر میں رہتے ہیں فار ایگزامپل، اور آپ جو پٹیشن فائل کر رہے ہیں وہ فائل کر رہے ہیں اسلام آباد کی، آپ جو پٹیشن فائل کر رہے ہیں وہ فائل کر رہے ہیں سکھر کی۔ سکھر سے آپ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں بن رہا کہ سکھر کے اندر ایک روڈ ڈل رہا تھا، اس کے اندر ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بھائی آپ تو وہاں جاتے آتے ہی نہیں ہیں۔ اول بات یہ کہ آپ ایگریو پارٹی ہونے چاہیے، آپ کا یہ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے، لوکس اسٹینڈائی آپ کا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے اندر جو کورٹ دیکھتی ہے، جس چیز کو کنسیڈر کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی قانون، کوئی رولز ریگولیشن جس کے اندر اس کو یہ ریلیف مل سکتا ہے، یعنی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس چیز کو دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو کنسیڈر کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ریٹ پٹیشن کے اندر آیا ہے، یعنی کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ریٹ پٹیشن جو ہوتی ہے وہ ایک سرکاری احکامات ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں وہ سمجھ لو شاہی احکام ہیں۔ آپ اوپر چلے گئے، یعنی کہ اوپر جانے سے پہلے آپ کے پاس نیچے کوئی اور ریمیڈی تھی، آپ کسی کے پاس جا سکتے تھے۔ آپ اگر وہاں نہیں گئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پہلے وہاں جانا چاہیے تھا۔ اگر وہاں سے آپ کا میٹر سولو آؤٹ نہیں ہوتا، آپ کو ریلیف نہیں ملتا، تو آپ یہاں پر آتے۔ جیسے کہ عام طور سے سروسز کے میٹر ہوتے ہیں، وہ سروس ٹرائبونل میں چلے جائیں آپ، یا آپ جو ہے وہ لیبر کورٹ میں چلے جائیں۔ آپ جو ہے وہ اس کا جو ٹرائبونل ہے، جو اس کی ریمیڈی موجود ہے، اس ریمیڈی کو آپ اویل نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ یا آپ نے کری ہے، آپ کو وہاں سے ریلیف نہیں ملا ہے، اور وہ جو آرڈر ہوا ہے وہ آپ کے خلاف ہوا ہے، تو آپ پٹیشن کے اندر آ سکتے ہیں۔ کوئی الٹرنیٹ ریمیڈی اگر موجود ہوگی تو اس صورت میں آپ پٹیشن نہیں لگا سکتے۔ جیسے کہ ہم اس بات کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ رینٹ کا کوئی کیس ہو اور رینٹ کنٹرولر ہمارے خلاف آرڈر کر دے۔ اب ہمارے پاس ریمیڈی کیا موجود ہے کہ ہم اس کی اپیل لگا سکتے ہیں، فرسٹ لینڈ اپیل جو ہوتی ہے، اور ہم فرسٹ لینڈ اپیل لگائے بغیر ہائی کورٹ کے اندر اگر پٹیشن لگائیں گے تو اس پٹیشن کے اندر صرف ڈائریکشن ہوگی۔ اس میں ڈائریکشن ہو جائے گی کہ بھائی آپ جو ہے وہ اپروپریٹ جو ٹرائبونل ہے، جو اپروپریٹ ریمیڈی ہے، جو الٹرنیٹ ریمیڈی ہے، اس کو پہلے اویل کریں۔ اگر اس میں کام نہیں ہوتا پھر آپ آئیے گا، ایسے نہیں آ سکتے آپ۔
अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अंडर आर्टिकल 199 के अंदर जो चीज़ कोर्ट कंसीडर कर रही है, जिस चीज़ों की बुनियाद के ऊपर कोर्ट आर्डर पास कर रही है, वो चीज़ें जो है वो आपने लिखनी है। यानी कि आपने ये लिखना है कि मैं एग्रीव पार्टी हूँ, कैसे हूँ, ये आप पिटीशन के अंदर लिखें। आप जो है वो ये लिखें कि रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक, एक्ट के मुताबिक, कानून के मुताबिक मेरा जो है वो ये रिलीफ बनता है जो कि मुझे नहीं दिया गया, गैर कानूनी काम हुआ है। तो वो क्या रूल्स रेगुलेशन थे, किसके मुताबिक आपका बनता था, उस बात को आप मेंशन करेंगे। और तमाम डॉक्यूमेंट्स अपनी पिटीशन के साथ फाइल करना आपके लिए ज़रूरी है, आपने फाइल करना है। उसमें जो है वो सेकंड अपील की तरह या अपील की तरह ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो पिटीशन फाइल करें और आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि रिकॉर्ड जो है वो नीचे वाली कोर्ट से मंगवा लिया जाए या ऐसा कर लिया जाए। ऐसा नहीं करा जाता है इसमें। इसके अंदर जो भी एग्रीव ऑर्डर है, जिस आर्डर की वजह से आपको नुकसान हो रहा है, जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं पिटीशन के अंदर, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने कोर्ट के अंदर फाइल करने, आपने लगाने, आपने कोर्ट को सेटिस्फाई करना है। उन डॉक्यूमेंट्स का लगाना ज़रूरी है। अच्छा, जैसे कि अगर कोई सरकारी इदारा है और उस सरकारी इदारे का कोई ऑफिसर जो है वो आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसा आर्डर पास करता है जिसकी वजह से आप एग्रीव हो जाते हैं, कोई आपको नुकसान हो जाता है, तो आपने उस सरकारी इदारे का, जैसे डीसी साहब हैं, एसी साहब हैं, कोई है ऐसा, एसएसपी ने कोई ऐसा आर्डर पास किया है, कोई ऐसा मसला हुआ है आपके ख़िलाफ़, तो उस को आपने बाय नेम पार्टी नहीं बनाना है। उसको आपने जो पार्टी बनाना है, एसएसपी कंप्लेंट सेल कोरंगी कराची, ठीक है, और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कराची ईस्ट, इस तरीके से आपने बनाना है उसको। और उसको बाय नेम नहीं बनाना है, क्योंकि उसकी जो पोस्ट है उस पोस्ट के ख़िलाफ़ हम चल रहे हैं। अच्छा, एक बात मद्देनज़र रहे कि ये जो रीट ऑफ पिटीशन होती है, ये रीट ऑफ पिटीशन जो है वो गवर्नमेंट इदारों के ख़िलाफ़ लगती है, सरकारी इदारों के ख़िलाफ़, प्राइवेट इदारों के ख़िलाफ़ नहीं लगती। गवर्नमेंट इदारा हो, जुडिशल बॉडी हो, कोज़े जुडिशल हो या सेमी गवर्नमेंट हो, ऐसे इदारों के ख़िलाफ़ ये पिटीशन हम लगाते हैं। कोर्ट जिन बातों को ख़ास तौर से कंसिडर करती है इसके अंदर, जिसकी बुनियाद पर आप अपनी प्रेयर बनाएंगे, वो क्या है? गैर कानूनी या नाजायज़ अहकामात जारी हुए, वो आप अहकामात की जो ऑर्डर की कॉपी है, जो भी मामलात हैं, वो आप साथ में लगा दें कि ये नाजायज़ है, ये गैर कानूनी ऑर्डर पास हुआ है, लिहाजा इस आर्डर को वापस कर दिया जाए, इस आर्डर को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, इसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि मेरा जो है वो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये राइट बनता है और ये जो आर्डर पास किया गया है ये गैर कानूनी है। इसके अलावा कोई जो है वो अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया है, गवर्नमेंट इदारे ने नाजायज़ इस्तेमाल किया है, कोई मुझे जो है वो डरा धमका रहा है, एसएसपी साहब, कंप्लेंट सेल या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या कोई भी ऐसा इदारा जो है वो मेरे ख़िलाफ़ गलत काम कर रहा है, मुझे जो है वो नौकरी से निकालने के लिए शोकाज़ दे दिया है, जबकि ऐसा कोई मामला बनता नहीं है मेरे ख़िलाफ़, या मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, जो भी मैटर है वो अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है, किसी भी बुनियाद के ऊपर, ज़बान की बुनियाद के ऊपर, सेक्ट की बुनियाद के ऊपर वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो नाजायज़ इस्तेमाल किया गया हो, इसको करेगा कंसिडर। या अख्तियार रखे बगैर, यानी उसके पास इस बात का कोई अख्तियार नहीं था और अहकामात जारी कर दिए, जो उसके पास पावर नहीं है, जो उसको कानून ने पावर डेलीगेट नहीं की, उस हिसाब से आर्डर पास कर रहा है, गैर कानूनी आर्डर पास कर दिया उसने, या कोई हुक्म खिलाफ कानून जारी कर दिया, ऐसा हुक्म जारी कर दिया कि यानी कि उसके पास पावर तो थी कि वो इस मैटर को कंसीडर करे, इस मैटर को रिजॉल्व करे, लेकिन उसने ऐसा आर्डर पास किया है जो आर्डर खिलाफ कानून है। इस किस्म का आर्डर पास नहीं हो सकता। किसी के खिलाफ ही आर्डर पास कर दिया कि आप जो है वो जब तक शादी नहीं करोगे तो आप जो है वो नौकरी कर सकते हो, शादी करोगे तो भाई आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये कौन सी बात है? कोई इसके ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो गए, इन्फ्रिंच हो गए, ऐसा कोई मामला हो गया है,
कोई खिलाफ कानून आर्डर पास कर दिया है, या जो आर्डर पास किया गया है वो नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि बंदे को पहले सुना जाए, उसके हिसाब से आर्डर पास हो, जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं कि सुने बगैर आर्डर नहीं होगा, उसकी बात को भी सुना जाएगा, ऐसा होगा, यानी कि नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी कोई खिलाफ वर्जी कर दी गई। ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल प्रिंसिपल है नेशनल जस्टिस का, इसकी अगर कोई खिलाफ वर्जी कर दी गई हो, या जो ट्राइब्यूनल है या अथॉरिटी है या जुडिशल या नीम जुडिशल जो भी इदारे हैं, वो अपने फ़राइज़ मनसबी जो उसे कानून दे रहा है वो इस्तेमाल नहीं करता। वो क्या कर रहा है कि जो उसको आर्डर पास करना चाहिए, यानी कि मुझे प्रोटेक्शन देनी चाहिए, मुझे बचाना चाहिए, इस तरह का कोई मामला हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तो उसके खिलाफ जो है वो आर्डर पास कर दिया, खिलाफ तवक्को आर्डर पास कर दिया, कोई खिलाफ कानून आर्डर पास कर दिया, कोई ऐसा कर दिया कि जो उसकी जिम्मेदारी है उसको पूरा नहीं कर रहा हो, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा वो, तो आप पिटीशन में जा सकते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है कि उसकी जो प्रेयर क्लास बनेगी वो इसी हिसाब से बनेगी। किस हिसाब से बनेगी कि ये जो आर्डर पास करा है ये गलत करा है इसने, और ये जो आर्डर इसने पास करा है ये इसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करा, या आर्डर पास ही नहीं करता, वो टाइम लगाता है, टाइम बर्बाद कर रहा है हमारा, हमसे कहता है कि नहीं इस तरह का मैं आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये जो वो अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसे करना चाहिए था। आपने एप्लीकेशन रिसीव भी करा ली है, सब करा लिए, वो डॉक्यूमेंट्स लगाएं उसके साथ और पिटीशन के अंदर उसको बताएं। इस तरह के जो भी मामलात हों, या ज़ाहिरी तौर पर कोई गलती की गई है और वो गलती सामने आ गई है, इदारे के ऑफिसर ने कोई ऐसी गलती की है, मीन्स जैसे कि हमारे पास इलीगल कंस्ट्रक्शंस की पिटीशन से होती हैं, मैंने अक्सर लगाई, डीबी के अंदर चलते हैं मैटर, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है मेरे घर के सामने, उसमें ऐसी बिल्डिंग बनाई है कि जिसकी वजह से मेरी हवा भी रुक गई, मेरी धूप भी रुक गई, और वो जो बिल्डिंग है वो रिहायशी इलाके के अंदर 10 मंजिला बिल्डिंग बना ली है। हमारे यहाँ पंजाब कॉलोनी के इलाके में, दिल्ली कॉलोनी के अंदर और महमूदाबाद के अंदर SBCA के ज़रिए से जो है वो उनकी मिली भगत के ज़रिए से बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें बनाई गई हैं। तो इस तरह का कोई ऐसा मामला होता है तो आप रिट पिटीशन लगाएंगे, और रिट पिटीशन के अंदर रिलीफ भी जो है वो फास्ट मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, और बहुत बेहतर होता है ये। उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो बातें हैं रिट पिटीशन से मुतालिक समझ में आई होंगी। ये समझ लें कि समंदर को कूज़े में बंद किया है मैंने, बहुत ही मुख्तसर तरीके से इस बात को समझाया गया है, क्योंकि महसूस ये हुआ कि पिटीशंस जो हाई कोर्ट के अंदर लोग लगा रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से लोगों को जो है वो कोर्ट के अंदर कुछ इंसल्ट फील होती है, कुछ ऐसे मामलात होते हैं, तो वो उस परेशानी से बच जाए। जिस परेशानी से बचाने के लिए मैंने अपने दोस्तों की मदद के लिए, अपने कोलीग्स की मदद के लिए, अपने भाइयों की मदद के लिए एक कन्वर्सेशन किए। हो सकता है इस कन्वर्सेशन के अंदर अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, कोई बात बेहतर नहीं लगी हो आपको, या कानूनी तौर पर मेरा पॉइंट बेहतर नहीं लगा हो, तो मुझे बताएं, मुझसे डिस्कशन करें। हम भी एक कानून के तालिब इल्म हैं। थैंक यू सो मच।